أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ مائدہ کی دو آیتوں کا جو ہے سمجھیے ایک آیت کا آدھا حصہ لیا ہے اور ایک آیت پوری لی ہے۔ پہلے میں اس کے معنی پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ، پھر ہم درس باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ بے شک تمہارے اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری سورہ صاد کی آیتیں ہیں، ایک آیت ہے بس سورہ صاد کی، کہ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ دو جگہ سے میں نے، ویسے تو قرآن مجید کے اوپر خود قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں، صرف میں نے دو یہ لی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ سلامتی کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کا راستہ ہے، اور قرآن مجید ہی ہمیں کفر کے اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر جو ہے ہدایت کے اور توحید کی جو روشنی ہے وہ دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے جو ہمیں یہ روشنی دکھا سکے۔ مرحبا بکم میری عزیز بہنوں، الحمدللہ الحمدللہ آج پھر ہم تقریباً کافی لمبے عرصے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر سے جو ہے آج یہ درس کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ جو اگلا مہینہ ہے وہ حج کا مہینہ، بابرکت مہینہ ہے، اور ابھی شوال سے پہلے رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، اور رمضان کا مہینہ آپ کو پتا ہے کس قدر عبادتوں والا، برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں کیا ہماری روٹین جو ہے وہ کچھ چینج ہو گئی تھی سب کی؟ یقیناً ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں سب کی روٹین رمضان کے مہینے میں جو ہے ایک دم بدل جاتی ہے۔ روزوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے پورے سال وہ بھی رمضان میں کرتے ہیں، اور جو پورے سال کرتے ہیں وہ رمضان میں زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، نفلی نماز پڑھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرتے ہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، سب کچھ جو تمام جو یہ عبادات تھیں جو ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے رکھا تھا، سب چیزیں ایک دم جیسے ہم ختم کر دیتے ہیں، اور جیسے ہم شعبان میں تھے وہی سیم شوال میں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ بنایا ہے صرف ہمارا؟ قرآن مجید جیسا چاہتا ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسے ہمارے نبی نے زندگی گزار کے دکھائی ہے، وہ جینے کے لیے پورے سال میں 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک مہینہ ہمیں اس حساب سے زندگی گزارنی ہے، اور پورا سال ہم جس طرح چاہیں گزاریں؟ نہیں میری عزیز بہنوں، دیکھیے یہ جو مہینہ ہے نا رمضان کا، یہ صرف روزوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے کہا گیا ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کا جو ہے پیریڈ ہے ہمارے لیے، اور ہم واقعی الحمدللہ گزارتے بھی ہیں اسے اسی طرح سے جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی قرآن مجید جیسا چاہتا ہے نا، ایک مومن ایک مسلمان جیسی زندگی گزارے ہم ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہے، لیکن یہ کیا ہے ٹریننگ، کہ پھر ہم 11 مہینے اس کو بنائے رکھیں،
और फिर जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर फिर वो एक इंसान है, कोताही आती है, भूल आती है, और फिर रमजान आता है, फिर हमारी ट्रेनिंग होती है 1 महीने की सख्त, और फिर हम 11 महीने। लेकिन बहुत अफसोस, मैं अपने समय सबको कहूंगी कि जैसा रमजान में हम होते हैं, हम 1 या 2 या 3 महीने भी ऐसे नहीं रहते। उसके बाद समझिए शव्वाल शुरू होता है, फिर हमारी वही जिंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। जबकि अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि हमें जिंदगी कैसी गुजारनी है, कुरान मजीद के हिसाब से गुजारनी है। यानी कि एक मुसलमान को देखते ही पता चल जाए कि ये मुसलमान है, कि उसकी जिंदगी पूरी ऐसी हो जैसे हजरत आयशा फरमाया करती थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। जिसने आपकी जिंदगी को समझ लिया, उसने कुरान मजीद को समझ लिया, और जिसने कुरान मजीद को समझ लिया, उसने आपकी जिंदगी को समझ लिया। यानी कि एक मुसलमान से, हर मुसलमान से अल्लाह ताला तवक्को रखता है कि उसकी जिंदगी पूरे तौर से कुरान मजीद के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हम गौर करें अपनी जिंदगी पे, क्या वाकई ऐसा है? तो आज हमारे दर्स का जो टॉपिक है कि कुरान मजीद की रोशनी में हम अपना मुहासबा करेंगे कि अल्लाह ताला जो हमसे चाहता है, क्या वाकई हम ऐसे हैं? सबसे पहले देखिए, एक मैंने आयत है सूरह निसा की, आयत नंबर 136, इसका एक छोटा सा मैंने हिस्सा लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, क्या फरमा रहे हैं इसमें अल्लाह ताला? ए ईमान वालो, ईमान लाओ। तो पढ़ने से बड़ा अजीब लगता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु जब आता है, हम बड़े एकदम कहते हैं ना कि हम एकदम खुश हो जाते हैं कि ये तो हमारे लिए आया है, कि हम ईमान वाले हैं। लेकिन आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, क्या ईमान वालो ईमान लाओ। तो इसका मतलब है कि जो हम समझते हैं ना कि ईमान, यानी कि हम मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, हम मानते हैं कि तमाम किताबें जो कुरान है और किताबें जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं वो आसमानी किताबें हैं। हम नबियों को भी मानते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं, यौम आखिरत को भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानते हैं, सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कह दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, कि सिर्फ तुम्हें मानने से, कि जबान से मान लें आप, वो काफी नहीं है। आमिनु यानी कि ईमान कैसे लाओ, यानी कि हमारी सिर्फ कौल ना हो, फेल, हमारे अमल, हमारा सोना जागना उठना बैठना हर चीज उस हिसाब से हो जैसी जिंदगी अल्लाह ने बताई है। और अगर हमने ऐसा किया, फिर हम हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु। मुसलमान जो है ना, वो किसी नस्ल का नाम नहीं है कि हम लोग तो सोचते हैं, जैसे यहूदी कहते हैं कि हम यहूदी हैं इसीलिए हम तो जन्नत में ही जाएंगे, तो मुसलमान भी ये सोचने लगे कि हम ईमान वाले हैं तो बस हम तो जन्नत में जाएंगे। नहीं, एक इंसान अगर मुसलमान घर में पैदा हो गया लेकिन उसके अमल जो हैं वो शिर्क वाले हैं, कुफ्र वाले हैं, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान काफिर घर में पैदा हो लेकिन वो ईमान ले आए, कलमा पढ़े, और फिर उसकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जैसे कि अल्लाह ताला ने बताई है, तो वो फिर जो है जन्नत में जाएगा। तो ये चीजें जो हैं ये हमें गौर करनी चाहिए कि सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, बल्कि आमिनू, यानी कि हमें ईमान लाना है। देखिए, जब अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया और इंसान को बनाया, पूरी कायनात में उसके आराम के लिए लाखों हजारों हर चीज, मतलब जो भी कुछ हमें नजर आता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम सोच सकें कि किसी और ताकत ने दी हो। हर चीज अल्लाह ने दी है, हर नेमत अल्लाह ने दी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा दो जानदार चीजें, यानी कि जिन और फरिश्ते, दोनों को इंसान से सिजदा करवा के इंसान के सामने सिजदा रेज कर दिया उनको। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बताया कि तुम अब खलीफा हो, दुनिया की तमाम चीज चाहे बेजान है और या जानदार है, तुम्हारे सामने मैंने झुका दिया। क्यों झुकाया? क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ मेरे सामने झुकना है, तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जैसे जैसे वक्त गुजरा और इंसान ने क्या किया, जिसके जो भी ताकतवर चीज देखी उसे लगा कि इसके अंदर ताकत है, सूरज देखा तो उसको परस्ती शुरू कर दी, चांद की कर दी, पत्थरों को पूजना शुरू कर दिया। उससे भी बढ़ के अपने जैसे इंसान जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया, जिनकी मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह की मर्जी के बगैर पलक नहीं झपक सकते हैं, एक सांस ज्यादा नहीं ले सकते हैं, उनको अल्लाह का शरीक बना दिया, उन्हें अल्लाह के बराबर में खड़ा कर दिया। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। कितने अफसोस की बात है ये। और इंसान ये कर रहा है कि वो अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को पुकारता है कि हाजत रवा, मुश्किल कुशा। तो अब हम गौर करें कि कितने ज्यादा हम गफलत के अंधेरों में हैं। कुरान मजीद में सूरे अनाम की आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तूने, इंसान से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तूने इन बहुत से लोगों की इताअत की जो जमीन में रहते हैं,
तो वो तुझको खुदा के रास्ते से भटका देंगे। वाकई में देखिए, हक पे लोग हमेशा मुट्ठी भरी रहे हैं, और वो लोग ज्यादा रहे हैं जिन्हें सिर्फ दुनिया की रोशनियों में ही मजा आता है। लेकिन हम, अगर वाकई हम जानते हैं हक क्या है, फिर पूरी दुनिया में चाहे मुट्ठी भर लोग, चंद लोग, गिनती के 2 या 4 ही लोग क्यों ना हो, हमें उनका साथ देना है, दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं आमतौर पे, भाई सारी दुनिया ये कर रही है, सारी दुनिया ये करे, क्या सब गलत है? या हमारे तो खानदान में होता चला आया है, क्या सब गलत थे हमारे लोग? इतने पढ़े लिखे लोग, इतने नमाज रोजे वाले लोग, क्या वो गलत हैं? मेरे अजीज बहनों, सही सिर्फ कुरान मजीद है या फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बस। उसके अलावा जो भी रास्ता है वो सब गलत है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद के हिसाब से ही जिंदगी गुजारनी है। और हमारे सबके घरों में जो है वो मौजूद है। हमें ये नहीं हम सोचे कि हम कैसे जिंदगी गुजारें, हर किसी के घर में वो जो दस्तूर अल्लाह ने हमारे लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो अल्लाह ताला ने बना दिया ना हमारे लिए कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो हर घर में मौजूद है। लेकिन वो, हाँ, जो दानों में लपेट के जो है रखा हुआ है, कभी उसे पढ़ने की, उसे समझने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की है। एक बात मैं पूछूंगी कि अगर कोई बीमार हो जाए, हम में से, आप में से कोई बीमार हो जाए, तो क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है कि भाई टेस्ट करवा लो। तो अब टेस्ट करवाता है, उसके भी टेस्ट करवाने के बाद पता चलेगा कि तुम्हें बीमारी क्या है। और फिर टेस्ट करवाता है, जब बीमारी पता चलती है कि ओहो भैया आपको तो ये बीमारी है, फिर वो इलाज करता है। तो ये तो जिस्मानी बीमारी है, जिसकी वजह से हम कितने फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन जो असली बीमारी है, हमारी दिलों की बीमारी, हमारी रूहानी बीमारी, जिसने हमारी रूह को जो है वो बीमार कर दिया है, उन बीमारियों का इलाज कहाँ है? उसका टेस्ट हम कहाँ करेंगे? उसके टेस्ट के लिए है कौन सी लैब? है कुरान मजीद की लैब। जो हमारी रूह को बीमारियां लग गई हैं, जो हमारे दिलों की बीमारियां लग गई हैं, चाहे नफाक की बीमारी हो, चाहे शिर्क की बीमारी हो, चाहे और बीमारियां हो, उनकी जो लैब है ना टेस्ट करने की कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो है कुरान मजीद। हम कुरान मजीद को खोलें और उसकी रोशनी में अपना मुहासबा करें, कुरान मजीद हमसे चाहता क्या है, अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है, कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जो जो कमियां हैं, जो करने की चीजें हम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। और जो रोकने के लिए अल्लाह ने काम कर रहे हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए। आज का दर्स हमने इसी टेस्ट के लिए रखा है। देखिए, कुरान मजीद में तो इतनी आयात हैं, इतने उसूल अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी के बताए हैं कि एक दो दर्स नहीं बल्कि बहुत दर्स चाहिए, कई महीने चाहिए हमें उसको जो है बाकायदा समझाने के लिए। ये समझिए, एक छोटी सी कोशिश जो है आज की, ये चंद आयतें मैंने उठाई हैं कुरान से। समझिए, समंदर में से बस एक मुट्ठी भर पानी मैंने निकाला है, कि उसको ही हम समझें, और उसको ही समझ के अगर हम अपनी जिंदगी को टेस्ट करें और गुजारने की फिर कोशिश करें, जैसे बताया है कुरान मजीद ने, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है हमारे अंदर वो ताकत ईमान की पैदा कर दे कि हम तमाम गुनाहों से दूर हो जाएं और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर जो है अमल करना शुरू कर दें। सूरे सूरे यूनुस की आयत नंबर है 57। अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कह दिया है कि ए लोगों, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत यानी कुरान करीम आ गया है, जो शिफा है उन बीमारियों के लिए जो सीनों में है। यानी कि जो बीमारी हमारे सीनों में है ना, उनकी शिफा है ये, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तो आज हम अपनी उन्हीं सीनों की जो बीमारियां हैं ना, उनको देखेंगे उस लैब में, और फिर हम अपनी बीमारियों को पकड़ेंगे और फिर इंशाल्लाह उसका इलाज करेंगे। अब सबसे जो बड़ी बीमारी है ना, देखिए, एक तो है कुफ्र। कुफ्र वालों को तो कहना ही बेकार है, क्योंकि वो तो ना अल्लाह को मानते हैं ना रसूल को। एक मुसलमान, सबसे बड़ी बीमारी उसकी है वो शिर्क की बीमारी है। सूरह ज़मर में आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए तमाम अंबिया की जानिब ये वही भेजी जा चुकी है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल, सारे अमल तुम्हारे जाय हो जाएंगे और तुम खसारे में रहोगे। शिर्क क्या है? सबको पता है शिर्क, फिर भी मैं बताऊं कि देखिए, हर चीज, हर नेमत अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही उससे ले सकता है। लेकिन जब हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, या किसी और को या तो पुकारने लगे अपनी हाजत के लिए, या फिर ये कहने लगे कि तुम अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश कर दो, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह खुद देखता भी है, सुनता भी है। तो हमने अल्लाह की इस सिफात को खत्म कर दिया, उसने भी शिर्क किया। इसने ये कहा, तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अगर किसी ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर वो बिना अल्लाह ताला से तौबा किए फौत हो गया तो उसकी कोई माफी नहीं है। तो सबसे बड़ी बीमारी जो है एक मुसलमान की, वो शिर्क की बीमारी है।
सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। सूरह लुकमान की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है, अल्लाह को छोड़कर जिन्हें ये पुकारते हैं वो सब बातिल हैं। यानी कि सब बातिल है, कोई ये नहीं है कि नहीं ये चीज है बस हम तो ये कहते हैं, नहीं, सब बातिल है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारना है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए। बंदगी को हमें खालिस कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। इसके अलावा ना किसी की बंदगी की जा सकती, ना किसी को पुकारा जा सकता, वही हाजत रवा है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर, मैंने आज तमाम बस कुरान की आयतें ली हैं, हदीसें मैंने नहीं ली हैं, क्योंकि कुरान की आयतें ही, जबकि चंद आयत ली हैं वो ही इतनी माशाल्लाह ज्यादा हैं, तो हम सिर्फ कुरान की आयतें लिखेंगे, उनको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी बस। सूरह बकरा की आयत नंबर 177, नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए, किस पर? अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, कुरान करीम पर और तमाम अंबिया पर, और अपना महबूब माल खर्च करे, किस पर? रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर और गुलामों को आजाद कराने पर। देखिए इसमें क्या कहा गया? महबूब माल खर्च करे। हम लोग क्या करते हैं, वो कपड़े जो फट फट गए, बिल्कुल बोसीदा हो गए, पहनने लायक नहीं है, या वो खाना जिसे देखने को हमारा दिल नहीं चाहता, हम, या टूटा फूटा सामान, वो हम अल्लाह की राह में देते हैं और बड़े तसल्ली से खुश होते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कोई लिबास है कि हमने पहन लिया, बहुत बिल्कुल सही है, अब एक दूसरे के लिए वो कारआमद है, वो देने में कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ वही चीजें दी जाएं नहीं, बल्कि अपना महबूब माल, कि मुझे पैसा पसंद है तो मैं पैसा अल्लाह की राह में खर्च करूं, मुझे अपने अच्छे अच्छे लिबास पसंद है तो अपने अच्छे लिबास में निकालूं मैं अल्लाह की राह में, अच्छे अच्छे खाने जो मुझे पसंद हैं, जो मैं अपने जैसे अमीर लोगों को खिलाती हूँ ना, वो गरीबों को खिलाएं वो हम लोग। यानी कि अपना महबूब माल अल्लाह की राह में हम खर्च करें, तो हमने खर्च किया। फिर नमाज कायम करें, ज़कात दें, कोई वादा करें तो पूरा करें, और दुख और मुसीबत के मैदान कारदार में सब्र से काम लें, यही लोग सच्चे हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। यानी कि बता दिया गया कि नेक लोग कौन हैं। तो मैंने आपसे बताया, अगर आप कॉपी और डायरी लेके बैठती तो आप ये पॉइंट्स लिख लेती, कि उसके बाद फिर अपने आप को चेक करती कि वाकई कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए और हम में नहीं है। अगर किसी के डायरी भी नहीं लिए, कम से कम मुहासबा जरूर करते चलें साथ के साथ, कि जो जो चीजें बताई जा रही हैं अगर वो अच्छी हैं, अगर हम में नहीं है तो हम सोचें कि वो करनी चाहिए, हमें जरूरी है। ये नहीं कि मैं मशवरा दे रही हूँ, जरूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बताई वो जरूरी है हमारे लिए, और जो चीज जिससे रोका गया है हम कर रहे हैं तो हमें फौरन रुक जाना है। तो आज हम अपना मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, आपके रब ने ये फैसला कर दिया है कि लोगों, तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, ये इस्लाम की बुनियाद है, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। उसके बाद एकदम दूसरी आयत कौन सी आई? जो तमाम रिश्तों की बुनियाद है, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो, उन्हें डांटो नहीं, उनके साथ नरमी, अदब और एहतराम के साथ बात करो। अब गौर करें हम अपने ऊपर, क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारे बच्चे, हमने ऐसी परवरिश की है? क्योंकि बच्चे तो जो देखते हैं वो करते हैं आमतौर पर। तो हम सबसे पहले तो अपने ऊपर, ये बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, किसी का ये खुला हुआ है माइक, तो बंद कर दीजिए प्लीज। तो इसमें क्या आ रहा है, कुरान मजीद क्या कह रहा है? उफ भी ना कहो, बहुत बड़ी बात है, उफ भी ना कहो। और हम क्या करते हैं, मतलब सोचिए, हम लोग तो जरा जरा सी बात पे माँ बाप मतलब सिर्फ देखिए, अगर वो दीन के खिलाफ कुछ करने को कहें, शिर्क करने को, उसमें तो हमें नहीं माननी माँ बाप की बात, लेकिन उसके अलावा हर तरह से उनका एहतराम करना है, इज्जत करनी है। घर के मामलों में अगर वो कहते हैं ये करना चाहिए तो बिल्कुल खुशदिली से उनकी बात माने। और अगर कोई चीज ऐसी है कि मान लो इख्तलाफ राय हो रही है, तो कम से कम इस तरह से उनको समझाएं कि उनको अफसोस ना हो और दुख ना हो, बिल्कुल माँ बाप को दुख ना पहुंचाएं, उस भी ना कहें। तो हम लोग गौर करें कि क्या वाकई हमारे माँ बाप के साथ ऐसे हमारे रवैये हैं। मैं अपने ऊपर भी गौर करूं, और दूसरे मैं ये भी गौर करूं, मेरे घर में जो मेरे पास आसपास लोग रहते हैं, मेरे शौहर हैं या मेरे बच्चे हैं या मेरे बहन भाई हैं या मेरे पड़ोसी हैं, क्या वो लोग हैं अपने माँ बाप के साथ ऐसे? अगर ऐसे नहीं है तो फिर मैं इस पे काम करूं, और मैं लोगों से कहूं कि कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने अपने बाद फौरन माँ बाप के लिए जो है आयत नाजिल की है कि माँ बाप से उफ भी ना कहो।
اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کہ جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں، غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ دیکھیے جب ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے نا تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا حال ہوتا ہے، ہم لوگ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، کوئی معافی بھی مانگے نا تو نہیں، بس یہ کر دیا تو کر دیا۔ اور ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب انسان جو ہے نا وہ بالکل مکمل ہے، غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے دیکھیں ہر انسان خطا کار ہے، اگر کسی سے خطا ہو جائے تو ہم دل بڑا کریں اور اس کو معاف کریں۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 77 اور اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو۔ سورہ حدید میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو، جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ دیکھیں یہاں ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بہت اچھا گھر ہو اور اس کے اندر ہم لون بھی ہو آگے، اور اگر اس کے اندر جو ہے مطلب بہترین ہو، 2 منزلہ ہو، 3 مطلب ایک خواہش ہوتی ہے نا، ہرا بھرا ہو، حسین ہو، ایسے سیٹنگ کریں یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نا آخرت میں گھر بناؤ، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی اور نہیں بنائے گا ہمارا گھر، ہم خود اپنا گھر بنائیں گے۔ اور جیسے یہاں گھر ہیں یہاں سے بہت بہترین ہوں گے، سونے چاندی یا موتی کے ہوں گے، جس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، فوارے ہوں گے، اور وہ چیزیں ہوں گی جو دنیا میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، لیکن یہ کس طرح حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ دیکھیے جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے نا، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے ہیں، بینک بیلنس بنا لیں، زیور خرید لیں، پلاٹس لے کے ڈال دیں، بہترین گھر بنا لیں، ایک موبائل ہے نہیں اور چاہیے، کار ہے اچھی خاصی نہیں، نئی کار چاہیے، اچھا فرنیچر، مطلب صرف ہمیں اپنی جان پہ خرچ کرتے ہیں۔ صرف اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہمیں کہ ہمیں اپنی جان پہ خرچ کرنا ہے، جتنا ہم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں غریبوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ جو میں نے تمہیں دولت دی تھی کہاں خرچ کی تم نے، اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو غریب نظر آتے ہیں ہم سوچتے ہیں اللہ کتنے غریب ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ 10% لوگ جو ہے نا وہ 90% لوگوں کے رزق پہ جو ہے وہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ نکالتے ہی نہیں اللہ کی راہ میں۔ اگر صرف زکات ہی تمام مسلمان پوری نکالنے لگے نا تو کوئی مسلمان بھوکا نہ سوئے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، کیونکہ دوسری میں نے ایک دم خرچ کرنے کے بعد یہ آیت اس لیے لی ہے کہ ہمارا خاص طور سے انڈیا پاکستان والے جو ہم لوگ ہیں نا، ہمارا حال یہی ہے، جب ہم خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں تو کیا کرتے ہیں کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ جس کو ہم نے، اب وہ ہمارا غلام بن گیا، اب وہ ہم سے دب کر رہے، جو ہم کہیں وہ کرے، اگر وہ کبھی ہمارے مطلب ہم اس سے کوئی کام کہیں وہ منع کر دے یا ہم اسے بلائیں وہ آئے نا، تو ہم فوراً کہتے ہیں ارے جب ضرورت تھی جب تو بڑی جلدی آ گئے، جب ہم نے تمہیں پیسہ دیا تو بڑی جلدی لے لیا، اب ہمیں ضرورت ہے تو تم کام نہیں آ رہے ہو۔ کیا کیا ہم نے؟ سب کچھ ضائع کر دیا، یعنی کہ خرچ بھی کیا اور ضائع بھی کر دیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ایسا ہے جسے سود کاتا کسی نے اور اس کو ضائع کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بس اگر دیکھیے جو ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں نا، اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہم آخرت کے لیے اپنے گھر بنا رہے ہیں، تو اس پہ کیا احسان ہوا ہمارا؟ تو اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر کیا کریں، احسان نہ جتائیں لوگوں پہ، یا یہ سوچ لیں کہ پیسہ بھی گیا اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے میری عزیز بہنوں کبھی بھی اگر کسی پہ احسان کرو، کسی غریب کو، کسی کو بیماری پہ خرچ کرو، گھر پہ خرچ کرو، پڑھائی پہ خرچ کرو، کسی کی شادی پہ خرچ کرو، کہیں بھی خرچ کرو، کبھی جتاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا وہ جمع ہو گیا، اگر آپ جتائیں گے تو وہ ایک دم آپ کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا، تو اسی لیے اپنا نقصان نہ کریں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 10 میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ یہ آیت میں نے اس وقت اور بھی زیادہ لی ہے کیونکہ اس وقت جو یہ کووڈ پھیلا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے لوگوں کا، کسی کے گھر میں کسی کا باپ ختم ہو گیا ہے، کسی کے والدین ماں باپ دونوں ختم ہو گئے ہیں، اب یتیم بچے گھر میں رہ گئے ہیں۔ تو کچھ جگہ یہ دیکھا گیا، بھی میرے ہی بالکل قریب میں میری بہن آصفہ جو ہے وہ جانتی ہیں کہ کوئی صاحبہ تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے پورا جو کچھ ان کا کاروبار تھا، ان کے جو ساجدار تھا، اس نے پورے پر قبضہ کر لیا۔ تو کس کا مال کھایا اس نے؟ ان یتیموں کا جو بچے تھے اس آدمی کے، وہ ان کا مال تھا۔ تو کیا کتنے دن وہ کیا اپنے قبر میں ساتھ لے کے جائے گا وہ مال؟ آخرت میں
اس نے تو پیٹ میں آگ بھر لیا, وہ آگ اس کے ساتھ جائے گی, وہ مال نہیں جائے گا اس کے ساتھ, وہ آگ جائے گی. اسی لیے آج جو ہمارے اطراف میں ایسے لوگ ہیں اور جن یتیموں کا مال ہے, بہت خیال کریں, ان کے مال کی حفاظت کریں جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے, ان کے اوپر خرچ کریں, اور خدا نہ کرے یہ نہ ہو, کیونکہ بہت آج دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ رشتہ دار ان کے مال پہ جو ہے قابض ہو رہے ہیں, اور وہ یتیم بچے بیچارے بالکل بے سہارا ہو کر رہ گئے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ آدمی ہوتا ہے جسے شیطان اپنے اثر سے پاگل بنا دیتا ہے. یہ اس لیے وہ کہا کرتے تھے خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی مانند ہے. اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام. دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اور مطلب دین کی فہم بھی ہے ان کو, لیکن اس کے باوجود وہ سود بھی کھاتے ہیں. اور سود کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی ہے, اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جس نے سود کھایا. تو میری عزیز بہنوں, سود سے بچو, سود سے بچو, کیونکہ کتنا کھا لیں گے ہم, قبر میں جائیں گے نا تو سود ساتھ جائے گا اور یہ سانپ بچھو بن کے ہمیں لپٹے گا, اور اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. تو سود سے بہت پرہیز کرنا ہے, بالکل ہمیں اس سے بچنا ہے, اپنے آپ کو جو ہے اس سے بچانا ہے. ایک اور میں بات ذکر کرنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیے آیتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں ماشاءاللہ, ساری آیتیں اچھی ہیں, لیکن کیونکہ وقت کم ہے تو میں آیتوں میں سے نا کچھ کچھ حصے اٹھا رہی ہوں بس. ٹھیک ہے, کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو اسکرین پہ آپ کی نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو رہی تھی, تو ہم نے وہ شاید نہیں ہوں گی, تو آپ اس میں پریشان نہیں ہوں, کئی میسج آ رہے ہیں میرے پاس. اس کے بعد جو ہے سورہ اسراء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عہد پورا کرو, اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا, یعنی کہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. منافق کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے, اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, بس ٹھیک ہے ہم تو یہ کام آپ کا بالکل پکا سمجھے کر دیں گے, بس گھر جاتے یہ چیز پہنچوا دیں گے آپ کو, آپ بے فکر رہیں, ہو گیا آپ کا کام, اور پھر بھول جاتے ہیں, اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے. اگر ہماری یادداشت اتنی کمزور ہے, یا تو وعدہ ہی نہ کریں, یہ کہیں کہ میں کوشش کروں گی کہ یہ کام کروں, اور اگر وعدہ کر لیا اور پورا نہیں کر سکے تو معافی مانگے اس سے, کیونکہ ان وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے کہ وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا؟ منافق کی پہچان ہے, منافقوں کی گنتی میں کھڑے ہو جائیں گے ہم. تو میرے عزیز بہنوں, بہت عام دیکھا گیا, وعدہ کر لیتے ہیں پورا نہیں کرتے, ہاں ہاں بس ہم کر دیں گے, ہاں ہاں بالکل بے فکر رہیے. اگر آپ نے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا تو اس انسان سے معافی مانگو کہ بھئی وعدہ کیا تھا پوری نہیں کر سکی, کیونکہ یہاں معافی مانگنا بہت آسان ہے, آخرت میں تو پھر سوچی جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. یہ بہت چھوٹی چیز لگتی ہے وعدہ خلافی, لیکن ویسے منافق کی پہچان ہے, بہت بڑی چیز ہے یہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. سورہ مائدہ آیت نمبر 8, اے ایمان والو اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بنو, کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو. سورہ الانعام آیت نمبر 152, جب بھی کوئی بات کہو انصاف کے ساتھ کہو, چاہے اس کی زد کسی رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑے, اور اللہ سے کہ وعدے پورے کرو. لیکن اس میں صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف حق کا ساتھ دینا ہے. اگر دو لوگ ہیں, ایک میرا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے, میرا دوست ہے, میری اولاد ہے, اور ایک دوسرا ہے غیر ہے بالکل, لیکن جو غیر ہے نا وہ حق پہ ہے, تو مجھے حق کا ساتھ دینا ہے. کتنی بڑی بات ہے, سوچئے. ہم لوگ ایسا نہیں کرتے, ہم تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اگر کسی خاندان سے دشمنی ہے نا, چاہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں, نہیں ہم اس میں سے کیڑے نکالیں گے, ہم ان کی غلطی بتائیں گے کہ نہیں وہ تو غلط ہی کر رہے ہیں, اور ہمارے اپنے جنہیں ہم چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں, وہ غلط بھی کر رہے ہوں گے نا تو ہم چپ ہو جائیں گے. اگر مطلب صحیح نہ کہیں تو کم سے کم چپ ضرور رہیں گے, بولیں گے نہیں کہ غلط ہے, غلط کو غلط کہنا سیکھیں. تو اس میں کتنی بڑی بات کہہ دی کہ چاہے اس کی زد میں کوئی رشتہ داری کیوں نہ آئے, لیکن ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. چاہے ایک غریب اور امیر ہے, کئی لوگ کہتے ہیں ارے بھیا غریبوں کا ساتھ دو, نہیں, اگر غریب اور امیر ہیں اور غریب اس وقت حق پر نہیں ہے, امیر حق کی بات کہہ رہا ہے تو وہاں میں امیر کا ساتھ دینا ہے, اور اگر کہیں پر غریب جو ہے وہ حق کی بات کر رہا ہے تو غریب کا ساتھ دینا ہے. کہیں پر طاقتور کمزور ہے, اگر اس وقت طاقتور حق کی بات کر رہا ہے تو طاقتور کا ساتھ دیں گے. یعنی کہ ہر جگہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کون رشتہ دار ہے, کون مضبوط ہے, کون کمزور ہے, حق کا ساتھ دینا ہے. جو حق قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حق کیا ہے اور جو حق پہ نہیں ہے وہ کیا ہے, یعنی کہ ہمیں ہمیشہ عدل و انصاف کا ساتھ دینا ہے. یہی آیتیں ملتی جلتی سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بے شک اللہ عدل, احسان, صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مشورہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. کس کا؟ عدل کا. عدل کیا ہوتا ہے؟
यानी कि इंसाफ, यानी कि जिसका जो हक है ना वो उसको दिया जाए, ठीक है। जैसे कि अब औलाद है, अगर मैं एक औलाद को कुछ दे रही हूं, दूसरे औलाद को भी मुझे देना होगा। या फिर वसीयत तो खैर अल्लाह ताला ने खुद ही बंटवारा कर दिया है, हम ये नहीं कर सकते, हमें हक ही नहीं दिया अल्लाह ताला ने इतना कि हम जो है एक बच्चे को ज्यादा दें और एक को कम दें। तो देखिए अदल तो ये है कि अगर एक मतलब मान लो किसी का बाप खत्म होता है और जायदाद है थोड़ी बहुत जितनी भी है, तो दो भाई हैं, दोनों बराबर बटे। लेकिन अगर एक भाई जो है बेचारा कमजोर है, गरीब है, और एक भाई जो है वो पैसे वाला है, अमीर है, उसे इतनी जरूरत नहीं है, तो अदल तो ये है कि बराबरी होगी बांटने में। लेकिन एहसान क्या होगा कि जो भाई अमीर है, मालो दौलत वाला है, वो अपना हक छोड़ सकता है अपने गरीब भाई के लिए, कह सकता है वो कि ये मेरा जो हक है, मैं अपना हक छोड़ता हूं अपने इस भाई के लिए, ठीक है। ये एहसान है, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को अपना दोस्त रखता है। इसके अलावा घर में दो लोग हैं, मान लो एक सास है एक बहू है, भाई अदल तो ये है कि दोनों काम करेंगे बराबर, क्योंकि दो फर्द है। लेकिन एहसान क्या है कि सास बुजुर्ग है, जाहिर सी बात है उम्र का तकाजा होता है, इंसान ज्यादा काम नहीं कर सकता। बहू जवान है, ज्यादा काम कर सकती है, बेटी है वो जवान है, वो ज्यादा काम कर सकती है, भारी काम कर सकती है। तो एहसान ये है कि हल्के काम जो है वो बड़ी उम्र का आदमी कर ले, और जो भारी काम है वो छोटे, यानी कि ये एहसान है। तो एहसान अल्लाह को पसंद है, तो क्यों ना हम एहसान करें और अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाएं। फिर सिला रहमी, सिला रहमी के बारे में भी यही है कि अल्लाह ताला ने खून के रिश्ते तोड़ने का हुक्म ही नहीं दिया है, कहा ही नहीं, हमें हक ही नहीं है, हम तोड़ ही नहीं सकते हैं कुछ भी हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मतलब हदीस है, एक खता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आप सोचिए इससे बढ़ के और क्या बात होगी। यानी जो खून के रिश्ते हैं हमारे, वो सारे के सारे हम तोड़ नहीं सकते। और हमारा हाल क्या है, जरा सी कोई बात हो जाए, बस अब हम इसके घर नहीं जाएंगे, इसके घर का पानी नहीं पिएंगे, हम इससे मिलेंगे नहीं, इससे पूछेंगे नहीं। आप सोचिए किसने हक दिया ये, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें बनाया है, जब अल्लाह ने हक नहीं दिया किसने हक दिया ये। हम ये रिश्ते तोड़ नहीं सकते। तो सिला रहमी का अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसके अलावा बेहयाई, नापसंदीदा बातें और सरकशी से अल्लाह ताला रोकता है, और तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम उसको कबूल कर लो। और आज का जमाना हम देखते हैं कि बेहयाई, बेहयाई की बातें, यानी कि जितने गंदे से गंदे जोक सुनाए जाएं, जितनी बेहयाई की बातें की जाएं, उससे क्या समझा जाता है कि तो आज का जमाना है। अपने आप को वो लोग बड़ा मॉडर्न, बड़ा अप टू डेट समझते हैं। बेहयाई के लिबास पहने जाएं तो क्या समझते हैं लोग कि जितना टाइट, जितने कम लिबास पहनेंगे, हाथ खुले हैं, गले बड़े हैं, पीछे से गले टाइट कपड़े हैं, आधी आधी जो आपका ये टांगे हैं ये खुली हुई हैं, तो उसे समझा जाता है कि आज के जमाने के हिसाब से हैं। यानी कि जितना ज्यादा बेहया वो इतना ही सोचता है अपने आप को मैं जमाने के हिसाब से नहीं हूँ। और ये नहीं पता उसे अल्लाह की नजर में वो इंसान जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है, और वो इंसान गुनाह का बोझ जो है अपने ऊपर ले रहा है। अल्लाह ताला उसे मना फरमाता है। अल्लाह ताला को हया पसंद है। देखिए जो चीजें अल्लाह ताला को पसंद है ना, उनसे तो हम भाग रहे हैं आजकल। अल्लाह ताला को हया पसंद है, अल्लाह को एहसान पसंद है, अल्लाह को सिला रहमी पसंद है, उन चीजों को तो हम भाग रहे हैं। और जो चीजें शैतान को पसंद है वो हम गले लगा रहे हैं। आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किस रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग, और करें हम इस चीज के ऊपर जरूर। उसके बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मुश्रिकों में से कोई आपकी पनाह मांगे तो उसे पनाह दीजिए ताकि वो अल्लाह का कलाम सुने। बहुत से लोग क्या कहते हैं सूरह तौबा के अगर मतलब जो लोग गुनहगार हैं, शिर्क करें, भाई दूर से मिलो उनसे, या फिर भाई हम नहीं मिलते उनसे, बड़ा उनके घर तो बड़ा गुनाह होता है, बड़े उनके यहाँ तो गलत काम होते हैं, या फिर वो शिर्क करता है, हमने तो नाता तोड़ लिया उनसे। नहीं, उन लोगों से मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, उन्हें सही बात नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? अगर जिसको हक पता है वो किनारा किनारा मतलब करके बैठ जाए ऐसे लोगों से, वो तो करते रहेंगे गलत पे गलत। और फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा जान पहचान वाला ये गुनाह कर रहा था, तुमने रोका क्यों नहीं उसे? इतना तो है ना कि मैं बताना तो है ना उनको। तो अल्लाह हिदायत देना अल्लाह का काम है, लेकिन हमें उन्हें बताना है। और लेकिन अपने आप को बचाए रखना है, ये ना हो कि हम खुद जो है उनके साथ जो है लग जाएं। इसीलिए जो लोग शिर्क करने वाले हैं, जो जो लोग आज मतलब दीन से दूर है, हमें उनको बुलाना है अपने दरसों में, अपने घरों में बुलाना है, उनसे ताल्लुक कायम करने हैं, उनको दीन की राह पे चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सूरह अनफाल की आयत नंबर 13 और 14 है। महानूर सूरह अनफाल की आयत नंबर 13-14।
جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، یہ دنیاوی سزا ہے جسے تم چکھو، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو ہم لوگ اگر سنیں گے ہم کیا کہیں گے؟ نا اللہ اللہ، اللہ رسول کی مخالفت کیا کون کرتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ مخالفت سمجھتے کسے ہیں آپ؟ دیکھیں مخالفت کے معنی ہے میں اگر میں ایک رائے رکھوں یا کوئی بات ہوں بھئی یہ ہونا چاہیے، سامنے والا کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں، یہ کرنا چاہیے، تو میری رائے سے اس نے مخالفت کی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں اس قرآن مجید کے حساب سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حساب سے، اور ہم اسے چھوڑ کر اس راہ کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں جو شیطان نے اس راہ پہ ہمیں چلا دیا ہے۔ تو کس کی مخالفت کی ہم نے؟ کھلے طور پہ ہم نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور ہم اپنا روٹین دیکھ لیں گھر میں، یہ مائک کھلا ہے کسی کا ذرا بند کر دیجئے پلیز، جنہوں نے بھی کھولا ہوا ہے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اب ہم غور کریں، میں نے کہا نا محاسبہ کرتے چلیں، کیا ہے ہماری زندگی ایسی کہ بالکل کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے یا رسول کے جو یا سنتوں کو چھوڑا ہو، یا اس کے کہا کہ نہیں آج کے زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ چیز تو بہت مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو چیزیں ہم پہلے سوچتے تھے ہو ہی نہیں سکتی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں لوگ، سفر پہ نہیں جا رہے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، شادیاں چند لوگوں کو لے کر ہو رہی ہیں، چہرے جو ہے لوگ ڈھکنے شروع کر دیا ہے، عورتیں تو عورتیں مردوں تک نے ڈھکنا شروع کر دیا ہے چہرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف یہاں ہم جان بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایمان بچانے کے لیے ہم نہیں کرتے، دنیا بچانے کے لیے ہم اپنی کرتے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں رہنے کے لیے بھلائی کے لیے ہم نہیں کرتے چیزیں۔ تو یہی تو مخالفت ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ دنیاوی سزا جو ہے وہ تم چکھو، اور آج مجھے لگتا ہے یہ دنیاوی سزائیں ہیں جو فتنے ایک کے بعد ایک برپا ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک فتنہ آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان فتنوں سے بچا لے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ عمدہ اسلوب اختیار کیجیے۔ دیکھیے جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا سوکھا سوکھا گئے بھائی ٹھیک ہے درس سے آ جانا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بس سوکھا کہا مطلب بالکل کوئی تعلق نہیں، بس صرف تعلق اتنا ہے کہ درس کی دعوت دے دی یا بیٹھے سوکھے طور پہ گئے، یہ کرنا چاہیے بھائی آپ کو، وہ نہیں، پہلے ان کے قریب آنا ہوگا، ان کے دل کے قریب آنا ہوگا، ان سے ان کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہوگی، ان سے رشتے قائم کرنے ہوں گے دوستی کے، محبت اور پیار، پھر حکمت کے ساتھ بات سمجھانی ہوگی، تب جا کے یہ ہوتا ہے جب ہم کسی سے حال احوال اس کا پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی بیٹی کیسی ہے، بیٹا کیسا ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی تو سسرال میں صحیح ہے، اور آپ کیا مطلب روزمرہ اس طرح اپنے پڑوسیوں سے ملنے والوں سے اپنے رشتے سنوارے پہلے، اس کے بعد دین کی دعوت رکھیں تو پھر انسان سنے گا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف جو ہے سوچتے ہیں کہ بس ایک دین کی درس دے دیا بس، اور اس کے بعد جو کوئی تعلق نہیں، تعلق ختم۔ ہمیں ایک دوسرے سے تعلق بنانا ہے بہت اچھے اور حکمت کے ساتھ، ایسے نہیں کہ ہم ایک دم کسی کو کہہ دیں بس تم تو گنہگار ہو، تم تو جہنمی ہو، نہیں، کس نے کہہ دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ، صرف ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو، کچھ نہیں پتا، ابھی تو زندگی پڑی ہے نا کہ آخر میں جا کے کون اللہ کے کس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ تو اسی لیے جب ہمیں دین کا کام کرنا ہے تو اپنے اندر حکمت لانی ہے اور بہت اچھے طریقے سے دین کا کام کرنا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور زمین پر اکڑ کر مت چلیے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 7 میں تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو تکبر کرے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں ہے اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اکڑ کر چلے اور تکبر کرنے والا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو اکڑ کے چلتا ہے، جو تکبر کرتا ہے۔ جب انسان تکبر کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں بہت اعلیٰ ہوں۔ تکبر کن چیزوں پہ کیا جاتا ہے؟ مال پر، دولت پر، خاندان پر، اپنے عہدے پر، مال و دولت پہ، اور اپنے ملک پہ بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، یعنی یا کسی کو اللہ ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، اولاد اگر جو قابل اس پہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، دی اللہ نے نعمتیں ہیں، اور اکڑ انسان رہا ہے کہ میں نے کمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ایک لمحے میں اللہ چاہے نا سب کچھ چھین لے کھڑے کھڑے۔ تو کس چیز پہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کی نعمتوں پہ، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے، تو ہم ان خوبیوں پہ اکڑے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں؟ تو اللہ نے کہا ہے کوئی میں نے حق نہیں دیا، ایسا اللہ نے کہا ہے، یہ حدیث ہے کہ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو کھینچا۔
क्योंकि देखिए जो तकब्बुर करता है ना, अपने आप को सबसे आला समझता है। अल्लाह आला ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, मेरे रब सिर्फ आला है, उसके अलावा कोई आला नहीं है। और जब इंसान अपने आप को आला समझता है, तो उसने क्या किया? सख्त गुनाह किया। अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद, और कुरान में नहीं हदीसें हैं बहुत, उसने अपनी नेकियां खत्म कर दी, जला दी बिल्कुल आग में, जिसने अकड़ा जो, और जिसने तकब्बुर किया। और वाकई आज देखिए आप लोगों के एटीट्यूड से समझ जाएंगे, ऐसे बैठते हैं अकड़ कर, ऐसे लोगों को देखते हैं, बिल्कुल के सामने वाला तो कुछ बिल्कुल उसके सामने जो है वो कुछ है ही नहीं, हकीर है। तो अगर हमारे अंदर ये कमी है, फौरन निकाल दें। क्यों हम अपनी नेकियों के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसे ज़ाय कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने बनाया है हमें। ये जो नेमतें दी हैं अल्लाह ताला ने दी हैं, तो उसमें अकड़ना हमारे लिए कुछ नहीं बनता, बल्कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जितना भी ज़्यादा कर सकें, कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों से हमें ज़्यादा नवाज़ा है, तो अल्लाह का शुक्र करें इस पर। उसके बाद सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, एक जमात दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए, न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, एक दूसरे को ताना ना दो और एक दूसरे को बुरे अलकाब ना दो। ये जो मैंने कहा ना, एक जमात दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए, तो एक ना कुछ खास लोगों ने क्लास बना लिया, वो सोचते हैं बस हम जरा मॉडर्न है, हम अप टू डेट हैं, अब सारी दुनिया जाहिल है। अब जब वो तो आपका नजर आता है, वो नजर आता है पार्टीज में, दावतों में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, वो नजर आता है सबका। हर वक्त उनका काम क्या होता है? दूसरों को नाम रखना। अरे उनका लिबास देखो कैसा होता है, अरे वो तो ये तो पिछले साल का जो है वो फैशन था, ये आज पहन रही है। अरे देखिए कैसा रंग है, ये बिल्कुल गंवारू रंग पहना हुआ है। अरे इनके खाने का अंदाज देखिए, उफ। और एक क्लास बना ली है कि यानी कि शक्कर जो ज्यादा पीता है वो गंवार है, जो फीकी चाय पीता है या शक्कर कम पीता है वो फैशन वाला है। वाकई में मैं बता रही हूँ, मैंने देखा है लोगों को इस तरह, कि अगर आप शक्कर का 2 3 4 चमचे डाल लेंगे, मतलब सेहत के लिए वो है, लेकिन मैं बता रही हूँ उससे एकदम गंवार है। तो या फिर लिबास या कलर, कुछ कलर जो है ना वो बना दिए गए कि ये कलर जो है ना गंवारों के कलर। क्यों भाई? क्यों है? अल्लाह ने बनाए सारे कलर, जिसका जो दिल चाहे वो कलर पहने। लेकिन हाँ, बना दिए गए हैं, कैसा कलर पहना हुआ है इसने, ऐसा कलर पहन। हो सकता है कि जो दूसरा है ना जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपका उड़ा रहा हो, अरे देखो जरा कैसे फीके फीके कलर पहने बैठे आप। तो ये हर इंसान के अपने शौक है, अपने पसंद है, अपना एक रहने का अंदाज है, अपने हर इंसान का जो एक क्या कहते हैं ना, कम्युनिटी होती है हर इंसान की, एक इलाका होता है, उसके इलाके के शौक होते हैं, खाना पीना होता है, पहनावा होता है, हर किसी का अलग है। तो इसके लिए हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। फिर किसी को ताना ना दो। फिर क्या है? बुरे अलकाब ना दो। ये तो औरतों में खास तौर से लगे ना, औरतें औरतें ज्यादा करती हैं ये। अब नाम रख देती हैं, बेचारी कोई मोटी है तो उसको पीछे क्या पुकारेंगे, अरे वो मोटी है ना, कोई लंबी है तो लंबी है ना, कुछ उल्टे सीधे गंदे नाम। देखिए अगर किसी का नाम ही पड़ गया बचपन से, किसी ने किसी का नाम कालू या भूरा या मोटी डल गया, और वो उसे पता है मेरा नाम है, उसी नाम पे बोलता है, तो वो तो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान को पता नहीं है, हम उसकी जिस्म की जो अल्लाह ने बनाई है उसकी बनावट, उस पे उसका मजाक उड़ाए पीठ पीछे कहकर, सख्त तरीन गुनाह है, सख्त तरीन गुनाह है। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो हम खुद भी रुकना है, अगर कोई हमारे सामने ऐसा लकाब करे तो उन्हें भी रोकना है कि भाई मुझे कम से कम गुनाह में मत डालो मेरे सामने नाम लेकर। सूरह हुजरात की ही आयत नंबर 12 भी है आगे, कि बदगुमानी से परहेज करो, एक दूसरे की टोह में ना लगे रहो, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? बदगुमानी से परहेज करना है, और हम लोग तो बहुत जल्दी बदगुमान हो जाते हैं। अगर मान लो मैंने किसी को दर्स में ही बुलाया, एक मिसाल देती हूँ, दर्स चल रहा है और वो नहीं आया, तो मैं दावत होती ना तो आ जाता, दर्स में नहीं आया, भाई हो सकता है उसकी कोई मुश्किल रही हो, वो तो अल्लाह ताला जानता है ना, अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है, हो सकता है वाकई कोई शरीर गुजर रहा हो। या फिर देखिए मैंने ये कहा था पर उसने ये किया ना, जरूर वो मेरी काट में क्या होगा, उसने ये काम, हो सकता है कि उस इंसान ने वैसे ही ये काम किया हो, मेरी मेरी उसमें ना क्या हो मुखालफत में। तो इसीलिए बदगुमानी नहीं करनी, 70 बार अच्छे गुमान करने हैं फिर। लेकिन हम तो 70 तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर के, हम तो पहला गुमान ही गलत कर लेते हैं लोगों के बारे में। फिर टोह में ना लगे रहें, ये औरतों की है सारी आदतें, कि मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, कोई मेहमान आया तो झांक झांक के देखें कौन आया है, कितने लोग आए हैं। अगर किसी की बेटी बहुत दिन से ससुराल से आई बैठी, क्यों बैठी है, सुनगुन लगाएंगे, उसके मिलने वालों से पूछो, घर जाएंगे, भाई इतने दिन हो गए क्या बात है, क्यों नहीं गई। अगर बहू मायके चली गई, बहुत दिन हुए नहीं आई, तो बेटे पेट में दर्द, गई किसी की बहू पेट में हमारे दर्द होने तक क्यों गई है, जरा पता तो करो। बच्चों को भेजेंगे या उनसे मिलने वालों से पूछेंगे, जरा पता तो करो क्या बात है। मतलब दूसरों के घर के मसले हैं, दर्द हमारे पेट में होता रहता है, टोह में हम लगे रहते हैं, किसी के यहाँ क्या हो रहा है, किसी के घर से जोर जोर बोलने की आवाज आई तो हम कान लगाएंगे, क्या बात हो रही है, क्या मिलेगा हमें। ये गुनाह क्यों कमाते हैं हम, फालतू के बेलज्जत गुनाह, यानी कि उन चीजों को जिससे अल्लाह ने रोका है हम वो करते हैं और मजे लेते हैं उसमें।
मतलब सोचिए किसी का मसला है, पेट में हमारे दर्द, परेशान हम हैं, अपनी जिंदगी खुद परेशान की हुई है, अरे अपने घर में खुश रहें, अपने औलाद में, अपने शौहर के साथ खुश रहें। उसके बाद है गीबत, कितना बड़ा गुनाह बता दिया गया है कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना जैसा है, कि अगर हम किसी के पीठ पीछे बात करते हैं, आमतौर पे मतलब वो बात जो हम उसके सामने नहीं कर सकते, वो बुराई जो उसके सामने नहीं कह सकते, और लोग कहते हैं वो उसके अंदर बुराई है ना इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो गीबत है, और अगर नहीं है बुराई हम कर रहे हैं वो तो तोहमत है, उससे भी बड़ा गुनाह है। तो ये सबसे ज्यादा है, मैं अपने समय सबसे कहूंगी, सबसे ये इल्तिजा करूंगी कि मतलब अपनी नेकियां से सोचिए, जिसके गीबत कर रहे हैं, जो नेकियां मैंने बहुत मुश्किल से कमाई हैं, आपने बहुत मुश्किल से कमाई हैं, वो हम तोहफे के तौर पे उसके नाम अमाल में ट्रांसफर कर रहे हैं। सोचिए कि मेरा बैंक अकाउंट है और एक एक करके नेकी उसके अकाउंट में जा रही है, किसका फायदा हो रहा है, मेरा या उसका? तो क्यों नुकसान उठा रहे हैं हम लोग? तो इसीलिए कभी भी जो है बहुत बचे गीबत से, अगर कोई गीबत करे तो याद दहानी करा दे कि देखिए क्या फायदा, हमारी नेकियां चली जाएंगी। फिर सूरह अल-अहज़ाब में आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के लिए खास तौर से कि अपने घर में टिकी रहो और जमाने जहलियत की तरह बनाओ सिंगार के साथ ना निकला करो, यानी घर में टिकी रहो। अल्लाह ताला नहीं पसंद करता कि औरतें जो मतलब फजूल में बस क्या है, टहलने जा रहे हैं, वैसे ही मॉल में चक्कर लगाने जा रहे हैं, ठीक है, बाजार में ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही जरूरत के तहत आप निकल सकते हैं, लेकिन जो फजूल में टहलना है ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। औरतों को कहा गया है कि जरूरत के तहत बिल्कुल निकलें, लेकिन जो एक फालतू में होता है ना कि बस ऐसे ही कहते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं मटर गश्ती करना, कि बस ऐसे ही जो है हम लोग जा रहे हैं, तो वो चीज पसंदीदा नहीं है। और फिर इस जमाने जहलियत की तरह बनाओ सिंगार के साथ ना निकला करो। क्या हाल है आजकल लेडीज का, आप सबने देखा होगा ना, बाजार जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, घर का मसाला दाल सब्जी, फौरन लिपस्टिक लग जाएगी, जल्दी से आईलाइनर लगा और मुंह खुला हुआ और चल पड़े। किसे दिखाने जा रहे हैं, सब्जी वाले को? हैं, सब्जी वाले को दिखाना है, बकाले वाले को दिखाना है, या डॉक्टर के जा रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना है, किसे दिखाने जा रहे हैं? वाकई ये सब हो देखा होगा आपने, अपने चारों तरफ होता है ना ये। तो इसे कहा गया है जमाने जहालियत वाले, यानी जहालत कहा गया है इसको। सजने संवरने को मना नहीं किया गया, लेकिन इनके लिए सजो, शौहर के लिए नहीं सजेंगी, बिल्कुल ऐसे हाल की रहेंगी। हाँ, गैर मर्दों के लिए सड़क पे चेहरा खुला है, मेकअप हुआ हुआ है पूरा, आप महफिल में जा रही हैं जहां लेडीज हैं, पर्दे का इंतजाम है, बिल्कुल अल्लाह ने मना नहीं किया, अच्छा लिबास पहनो, ज्वेलरी पहनो, जीरत इख्तियार करो, लेकिन पर्दे के अंदर। लेकिन जब आप बाजार में जा रही हैं तो चेहरा ढक के जाएं, जिससे कि किसी नामहरम की निगाह आप पे ना पड़े। ये जहालत वाली बात कही गई है, कुरान में कही गई है, आप मुझे ना सोचे कि मैंने कही है, ये कुरान मजीद कह रहा है, जाहिलियत वाला बिल्कुल ये अंदाज है। सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 का कुछ हिस्सा मैंने लिया है। ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ईमान वाली औरतें भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय उसके जो जाहिर हो जाए, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़ने डाले रखें और अपना बनाव सिगार किसी के सामने जाहिर ना करें। सूरह नूर की आयत नंबर 30 खुले तौर पे कह दिया गया क्या कि अपनी निगाहों की हमें हिफाजत करनी है, ठीक है, ये नहीं है कि ताक झांक में लगे रहें, कोई नजर आ गया, मान लो हम रोड पे जा रहे हैं, चेहरा हमने मतलब ढका हुआ है, पर्दा क्यों, लेकिन जाहिर बात लोग, लेकिन अब तार तार के नहीं देखना, कोई जा झुक झुक के देख रहे हैं, दूर तक निगाहें जा रही हैं। और मर्दों को भी कहा गया है कि बिल्कुल भी औरतें जा रही हैं अपनी निगाहें नीची रखें, क्योंकि वो पर्दे में हैं। जो बेपर्दा है उनका तो जाहिर सी बात है कि वो खुद भी गुनहगार बनती हैं, मर्दों को भी बनाती हैं, लेकिन मर्दों को भी चाहिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। उसके बाद कहा गया है कि ईमान वाली औरतें जो हैं वो अपनी जीनत जाहिर ना करें। जो जीनत मैंने अभी पहली आयत में बताई है कि आपने अंगूठी पहनी हुई है और मेहंदी के हाथ हैं आपके, मेकअप है और जा रहे हैं आप लोग, अपनी जीनत को रोटी ढक पड़ी के हुई है रखिए। थोड़ी सी, और देव बना लेती प्लीज हूँ, प्लीज जरा ये बंद कर गर्म दीजिए, कर जिनका लूंगी, लूलू जिनका वाला माइक खुला वाला हुआ है प्लीज। उसका खुला। उसके बाद जो है, हाँ, ये जो जीनत जाहिर हो जाए, अब किसी का कद लंबा है, अब जाहिर सी बात है वो लंबा कद जो है वो तो नजर आएगा ना, वो तो बेचारी छोटा तो नहीं कर सकती। और अगर किसी की आवाज अच्छी है, अब कई जगह होता है इंसान को बात करनी पड़ जाती है, डॉक्टर से बात करता है इंसान को, दुकानदार से भी कभी कुछ सामान ले रही है तो बात कर, मतलब आवाज उसकी सुन लेता है वो, तो अब उसकी आवाज अच्छी है, उसको ये तो जरूर है कि उसमें लचक पैदा ना करे, लेकिन जैसी आवाज है उसको वो करख्त नहीं बना सकती। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन हाँ, ये कोशिश ये करे कि जीनत जाहिर ना हो बिल्कुल भी। फिर दूसरी चीज क्या है, गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले, साफ आ गया गिरेबानों पर। और हमारे यहाँ क्या फैशन हो गया है, बिल्कुल जो फेस होता है ना, फेस से सर तक गिर्द यूं लपेट देते हैं हम दुपट्टा बस, और गिरेबान हमारे यानी सीने खुले होते हैं, ये फैशन चल गया है। उनसे तो बेहतर हैं जो ना सर खुले हैं, जिनके सर भी खुले हैं और गिरेबान भी खुले हैं,
उनसे तो बेहतर हैं वो जो सर ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल नहीं है क्योंकि गिरेबान खुले हैं उनके। तो साफ तौर पे आया है गिरेबान पे हमें दुपट्टी ओढ़नी डालनी है, यानी कि जब हम दुपट्टा सर पे लपेटते हैं तो कोशिश करें कि उसका एक सिरा जो है हमारे सीनों पे भी आ जाए, जिससे कि वो ढका रहे। ये फैशन, ये कोई दीन नहीं है कि सिर्फ हम चेहरे के चारों तरफ लपेट लेते हैं कस के उसको, ठीक है। उसके बाद सूरे अल अहज़ाब की आयत नंबर 59 में है, ए नबी अपनी बीवियों और ए मुसलमानों अपने औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादरों के पल्लू लटका लिया करें। अब लटकाने की बात कही गई है, लटकाना कैसे होता है? चेहरे पे ऐसे ऐसे लपेट लेना होता है या ऐसे? अब मैं कोई चीज जरा वहां जाके लटका दो तो ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे लटकाई जाती है। तो अभी मुझे एक साहिबा मिली, वो कहने लगी कि भाई ये तो नबियों की बीवियों के लिए आया है। मैंने कहा नहीं, आगे अहले ईमान भी आया है। या तो आप ये कहते हैं अहले ईमान आप नहीं है, क्योंकि नबियों के साथ साथ मुसलमान मोमिन या अहले ईमान की बीवियों को भी कहा गया है, जिससे वो पहचाने जाए वो ईमान वाले हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जी नहीं पर्दा नहीं है, पर्दा इस्लाम में नहीं है, तो वो ये आयत देख लें, साफ है अहले ईमान। तो या तो इंसान ये कह दे कि हम ईमान वाले नहीं है इसीलिए हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता, सिर्फ नबियों की बीवियों। ये बहुत आजकल कॉमन हो रही है चीज, बहुत ज्यादा मैं महफिलों में सुनती हूँ कि बस नबियों की बीवियों के लिए पर्दा आया था, चेहरे का पर्दा नहीं है। तो ये गौर करें इसकी, आप पढ़ें हदीसों से पढ़ें इसको। तो ये चीज तमाम मोमिन औरतों के लिए आया है, अगर आप मोमिन अपने आप को समझती हैं तो। फिर सूर्य मोमिनीन में जो मैंने पहले जिक्र किया था, जो सूर्य बकरा की आयत में कि कौन लोग हैं जिन्होंने फला पाई है, नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, इसमें से मैंने एक आयत पे ज्यादा जोर दिया है, वही मैं बयान करूंगी, और सब चीजें पीछे चली गई हैं कि ज़कात देते हैं नमाज काम करते हैं। बस एक मैंने आयत वो ली है इसका 2 नंबर का आयत नंबर 2 सॉरी जी, बेकार और लघु बातों से परहेज करते हैं। क्या है बेकार और लघु बातें? जो आजकल आम हो गई हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, क्या है वो काम की बातें हैं जो उसमें उसमें दर्स भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नेट के जरिए हो रहा है, व्हाट्सएप पे भी आती हैं चीजें, लेकिन क्या सारी चीजें अच्छी आ रही हैं? लोग ऐसी ऐसी फालतू और बेहुदा चीजें भेजते हैं कि अपना तो टाइम वो देख के जाया कर ही रहे हैं, दूसरे लोगों का भी जाया कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग होता है क्या है देख तो ने खोल के, अब उसने 1 मिनट भी देखा, 1 मिनट उसका कहाँ लिखा गया, अल्लाह के यहाँ किस चीज में लिखा गया? तो ये जो है ना लघु और बेहुदा बातों में जो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम एक दिन ना बाकायदा लिखें कि कितना टाइम हमने घर के काम में लगाया, कितना टाइम हमने आराम किया, कितने टाइम हमने अपने शौहर को दिया, कितना टाइम बच्चों को दिया, कितना टाइम इस नेट को दिया। तो आप यकीन जाने सारा टाइम हमने इसको ही दिया हुआ होता है ज्यादातर। जब देखा खोला और देखा, खोला और देखा। और उसके बाद मैंने वही कहा कि अगर अच्छी आप मैसेज कर रहे हैं वो भी एक लिमिट में होने चाहिए, ये ना हो ज्यादा मैसेज कर रहे हैं आप, क्योंकि एक आदमी की आप अकेले नहीं है भेजने वाले, बहुत लोग हैं, तो वो भी एक लिमिट में होना चाहिए। उसके अलावा जो फालतू चीजें हैं, आप सोचिए आप अपने आप तो गुनाह कमा रहे हैं उन फालतू चीजों को देख के, जब आप लोगों को डाल रहे हैं, अब उसने देखा उसका गुनाह भी आपके सर, अपना तो है ही उसका, फिर उस जिसको आपने भेजा उसने आगे 10 को फॉरवर्ड कर दिया, अब आपको किसका गुनाह हो गया? 11 का। अब उन 10 ने 100 को कर दिया आगे, यानी कि एक बार आपने देखा, एक जगह फॉरवर्ड किया, और जब तक वो चलता रहेगा आपके जरिए से भेजा हुआ, आप सोचिए कि यानी कि गुनाहों का अंबार लग जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसी चीज ना भेजें जो गुनाह वाली हो, लघु हो, तो उसमें जो है परहेज करें और गौर करें। सूरह फुरकान की आयत नंबर 63, और रहमान के नेक बंदे वो हैं जो जमीन में आजिजी और नरमी के साथ चलते हैं, और जब नादान लोग उनके मुंह लगते हैं तो सलाम करके गुजर जाते हैं। इसी तरह की सूरह फुरकान की आयत नंबर 72 भी है, और जब किसी नापसंदीदा चीज से उनका साबका पड़ता है तो शरीफों की तरह गुजर जाते हैं। देखिए, जो लोग अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं ना, वो इतने ही उनके अंदर आजिजी होती है। ये और बात है कि मैं ये देखती हूँ, मैं सबको नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो चीज तो भी गुनाह में चली जाएगी, बहुत लोग मैंने ऐसे दीनदार देखे उनके अंदर एक सख्ती होती है, पता नहीं क्यों, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने नरम मिजाज थे, बच्चों से भी हंस के बात क्या करते थे, अपनी बीवियों का भी ख्याल करते थे। बहुत से मैंने दीनदार लोग देखे, पता नहीं एक लबादा सा उन्होंने ओढ़ लिया है, बच्चों से तो सख्ती से बात, अपने घर की औरतों का तो कुछ नहीं समझे, सख्ती से बात, मतलब वो मुस्कुराना को गुनाह समझते हैं। और दूसरे झुकना किसी के सामने, आजिज़ी, जो जितना अल्लाह के करीब आजिज़ी आ जाती है उसके अंदर। तो जिस इंसान के अंदर जो अल्लाह के जितना असलियत में करीब होता है ना, उसके अंदर आजिज़ी और नरमी होती है उसके मिजाज के अंदर, ये एक पहचान है उसकी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देख लें कितने नरम मिजाज और कितने आपके मिजाज के अंदर जो थी वो आजिज़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं सूरह लुकमान की आयत है, भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और तुझे जो तकलीफ पहुंचे उस पर सब्र कर, बेशक ये काम बहुत हिम्मत का जरूरी है।
मैं बहुत जल्दी लेके चलती हूँ, चंद आया रह गई है मेरी। देखिए, हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अच्छी बात जो भी उसको पता है वो लोगों तक पहुंचाए। अगर वो बात नहीं पहुंचा सकता तो उसके पास जो किताबें हैं या फिर जो दुरूस के आपके पास मैसेज आते हैं आप लोगों तक पहुंचाएं। जितने लोग हो सकता है, मैंने आपको भेजा है या आप किसी दोस्त ने आपको भेजा, अब आपने 10 को डाल दिया वो मैसेज के भी दर्स है यहाँ पर, अब उन्होंने सुना, उन्होंने एक बात भी अपना ली, वो आपके लिए भी सदका जारिया हो जाएगी। या फिर आपने यहाँ किसी भी दर्स में जहां भी आप जा रहे हो, आपने कोई बात अच्छी सुनी, आपको अच्छी लगी कि वो कुरान और हदीस से हो, लेकिन देखिए वो शिर्क वाली या बिदत वाली बात ना हो, ये जरूर गौर कर लें। उसका हवाला जो है ना वो हदीसों से हो या कुरान से हो, फिर उसको आप आगे बताएं लोगों को। तो ये जो है बुराई से लोगों को रोकें, कम से कम बताना तो फर्ज है ना। अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते तो अपनी अच्छी बात पहुंचा जरूर दें। और फिर ये जरूर करें कि सब्र करना है। कुरान में वलअस्र में भी आता है, इसके अंदर भी है कि सब्र करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं सामने वाला आपको क्या जवाब दे दे कि हाँ हाँ बस हमें सब पता है, सब पता है, बहुत आई आप अल्लाह वाली। तो अब ये नहीं है कि आप जवाब दें कि लो जी हम तो अच्छी बात बता रहे थे, अब पता चले कि अच्छी बात तो एक तरफ रह गई और वहां झगड़ा फसाद शुरू हो गया। अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो आपको सब्र करना है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सूरह हुजरात में है कि तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह कराओ, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी कि सुलह कराना बहुत बड़ा सवाब है। अगर दो हम भाई, मतलब ये नहीं कि मेरे भाइयों में हो, बस किसी भी मुसलमान बहन भाई में आपस में कोई फसाद है, लड़ाई है, तो हम कोशिश करें कि उनमें सुलह करवा दें। सूरह अल अराफ में आयत नंबर 199 में आप अफू और दरगुजर इख्तियार कीजिए और भलाई का हुक्म दीजिए और नादानों से एराज कीजिए। यानी कि अफू दरगुजर अल्लाह को बहुत पसंद है, जो मैंने पहले भी पीछे भी दर्स में भी बताया है कि माफ करना, किसी की गलती को दरगुजर करना अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। जब हम अल्लाह के बंदों को माफ करेंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें भी माफ करेगा। उसके बाद सूरह बकरा में आयत नंबर 148 नेकियों की तरफ जल्दी करो। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है कि यकीनन तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जात में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखता है। तो ये हमारे सामने एक कहते हैं ना एक आइडियल बना के पेश कर दिया कि ये, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। अगर हम चाहते हैं कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारें तो बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लें, उसके हिसाब से हमें गुजारनी है। और जो मैंने पीछे सारे पॉइंट्स बताए हैं आप गौर करते चलें अपनी जिंदगी पर। अब हमसे गलतियां हो गई, अब क्या होगा? क्या मतलब हम सोचे बस गलती तो हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता? नहीं, अल्लाह ताला ने क्या कहा है सूरह यूसुफ में? अल्लाह की रहमत, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग नाउम्मीद होते हैं, यानी कि उम्मीद रखनी है अल्लाह ताला से। फिर सूरह नहल की आयत नंबर 119, जिन लोगों ने लाइल्मी की वजह से गुनाह का इर्तिकाब किया फिर उसके बाद तौबा कर ली और अपनी हालत की इस्लाह कर ली, तो बेशक आपका रब इस तौबा के बाद उनके लिए बड़ा माफ करने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बहुत बहुत माफ करने वाला है। अल्लाह तो मोहब्बत करता है अपने बंदों से। अल्लाह कहता है तुम एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ के आऊंगा आपके सामने, तुम चल के आओगे मैं दौड़ के आऊंगा। यानी कि अल्लाह की तरफ रुजू तो करें ना, जिंदगी तो गुजारे ना अल्लाह की, जैसे बताया अल्लाह ने। फिर देखिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें आएंगी, दिल के अंदर सकीनत आएगी। रहमत हम ये ना सोचे कि माल बरसने लगेंगे, माल और दौलत हमारे ऊपर बस नहीं, दिल के अंदर एक सुकून, एक सकीनत आएगी। एक महल में रहने वाला भी इंसान जो है ना वो बेसकून हो सकता है, और जिसे अल्लाह ने सुकून दिया वो झोपड़ी में बैठा होगा लेकिन उसके दिल में सुकून होगा। तो जो इंसान अल्लाह के राह में निकलता है, अल्लाह के हिसाब से जिंदगी गुजारता है, उसके दिल के अंदर एक सकीनत होती है। फिर उसके बाद सूरह फुरकान की आयत है 70 कि जो शख्स तौबा करेगा और ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी बात अल्लाह ने कह दी कि जो इंसान तौबा कर लेगा और ईमान ले आएगा तो उसके गुनाह भी अल्लाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह। सोचे इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब मतलब क्या हो सकता है इससे ज्यादा कि अल्लाह ताला अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और ईमान की रविश पे चलें, यानी कि हमारे अमल के अंदर ईमान और ये सब कुछ आ जाए, तो आप सोचिए अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 20 है, तुम जो भी नेकी आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास ज्यादा बेहतर और अजर के एतबार से ज्यादा बड़ा पाओगे और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। यानी कि जो भी हम करें ये ना सोचे कि पता नहीं अल्लाह के पास बहुत छोटी से छोटी नेकी को, ये ना सोचे अरे ये चीज मैंने जरा सी किसी को जैसे कोई जा रहा है, मान लो किसी कोई चीज गिर गई, छोटी सी चीज बता रही हूँ, बाजार में कोई जा रहा है उसकी कोई चीज गिर गई और हमने उसे उठा के दी कि भाई तुम्हारी चीज गिर गई, तो
ये भी नेकी है। यानी कि छोटी सी चीज, कोई पत्थर रास्ते में हमने हटा दिया, ये बहुत छोटी नेकी को भी ये ना सोचे कि ये तो छोटी है, नहीं, अल्लाह के यहाँ चीज जमा है, यानी कि जर्रा बराबर भी नेकी। और इसी तरह किसी भी गुनाह को छोटा ना समझे, हर गुनाह भी अल्लाह के पास जमा है। उसके बाद कामयाबी किसमें है, आल इमरान में अल्लाह ताला ने बता दिया है, आयत नंबर 103 में, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और अल्लाह की रस्सी क्या है, वो है कुरान मजीद। बस कामयाबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में है। सूरह आल इमरान में कहा अल्लाह ताला ने, जब आप पुख्ता इरादा कर ली तो फिर अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी कि जब हम अल्लाह की राह में निकल जाएं तो फिर भरोसा करें अल्लाह पे कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी तौबा भी कबूल करेगा और हमारे तमाम अमल भी अल्लाह कबूल करेगा। सूरह आल इमरान में है, अल्लाह किसी का नेक अमल, 195 आयत है, अल्लाह किसी का नेक अमल जाया नहीं करता, चाहे मर्द हो चाहे औरत, तुम सब आपस में बराबर हो। फिर आखिर में बस ये एक आयत पढ़ूंगी बस, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 है कि जब कोई राह रास्त अपनाता है तो वो अपने फायदे के लिए ऐसा करता है, और जो राह से भटक जाता है उसका बवाल भी उसी पर होता है। कोई शख्स भी किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाता। आप देखिए, इससे बढ़ के खुले तौर पे और क्या बात हो सकती है कि जो इंसान जो कुछ करेगा वो अपने लिए करेगा, ना किसी के गुनाह की वजह से मैं पकड़ी जाऊंगी, ना मेरे गुनाह का बोझ दूसरा उठाएगा, ना मैं नेकी करूंगी मेरी नेकी लेके दूसरे को दी जाएगी। जो चीजें बता दी गई हैं कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी नेकी से दी जाएगी, सिर्फ वो तो खुले तौर पे आ गई ना, कि गीबत करना है, किसी की तकब्बुर करना है, माल खाना है, उसमें तो हम अपनी नेकी जाया कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम करेंगे वो अपने लिए करेंगे, और जो हम गुनाह करेंगे वो भी अपने लिए करेंगे। कोई हमारे गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। अगर मैं मतलब उस रास्ते पे जा रही हूँ जिसका रास्ता साफ तौर से बता दिया गया जहन्नुम की तरफ है, तो वो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ, किसी दूसरे के पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही हूँ। तो बस आखिर में मैं यही कहूंगी कि मेरी अजीज बहनों, जो हमने पढ़े हैं पॉइंट्स, अपना मुहासबा करें कि कहीं खुदा ना करे हम शिर्क तो नहीं कर रहे हैं, या अपने माँ बाप के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, यतीमों के माल में हमने कोई गलत मलत तो नहीं किया है। उसके बाद नमाज ज़कात अदा करते हैं, फिर उसके बाद अफू और दरगुजर से काम लेते हैं लोगों के साथ, लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, अपनी जबान की हिफाजत करते हैं, यानी झूठ, गीबत, चुगली, तोहमत, इन सब और बेहयाई की बातों से हमें बचना है। उसके बाद अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना है, अपनी जीनत को जो है हमें छुपाना है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। उसके अलावा अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। इंसाफ तो अदल तो है ना, बराबरी हो, लेकिन अल्लाह को पसंद है एहसान करना, तो हम एहसान की रविश इख्तियार करें, और उसके बाद लोगों को भलाई का हुक्म दें, और जो गलती हो गई कोई बात नहीं, सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लें, और उसके बाद फिर इस कुरान मजीद के हिसाब से जिंदगी गुजारें, और मुहासबा करें अपना कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो गुनाह वाली और हम कर रहे हैं, और कौन सी वो अच्छी चीजें हैं जिसमें बहुत फायदे हैं और हम वो लोग नहीं कर रहे हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। बस आखिर में इस दुआ के साथ करती हूँ कि या रहमान रहीम, या करीम, या पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमें सिर्फ जो है कौल वाला मुसलमान ना बना, बल्कि अमल वाला मुसलमान बना। ईमान सिर्फ हम जबानी ना लाएं कि हम लाते हैं अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूल पर, उसके नबियों पर, यौम आखिरत, बल्कि अमल में उस चीज को लाएं। यानी कि हम जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं चलता फिरता कुरान थे, आज भी हमें ऐसे लोग नजर आते हैं कि उनको देख के लगता है वाकई इनके अंदर है ईमान। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे रब्बुल इज्जत, हमारे अंदर से जो मोहब्बत है ना गुनाहों से, जो मोहब्बत है ना हमारे उन रास्तों से जो जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह वो मोहब्बत हमारे अंदर से निकाल दे या रब्बुल इज्जत। या अल्लाह हमारे नफ्स को अपने हाथ में ले ले रब्बुल इज्जत, बहुत बहुत कमजोर हैं हम लोग, और अल्लाह ताला हमारे अंदर, या अल्लाह हमें हिदायत दे दे, तो काफिरों को भी अल्लाह हिदायत दे देता है। या अल्लाह जो गुनाहों से दूर कर दे, और हमें कुरान के हिसाब से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के एतबार से अल्लाह जिंदगी गुजारने वाला बना दे। अल्लाह जो जिंदा है, या अल्लाह वो भी ईमान के साथ जिंदा रहें, मौत आए तो ईमान के साथ आए, और जो तेरे पास पहुंच चुके हैं या अल्लाह उनकी बेहतरीन बेहतरीन मग़फ़िरत फरमा दे या रब्बुल इज्जत। या अल्लाह उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा दे। अल्लाह मेरा छोटा भाई जिसका भी 1 महीने पहले अल्लाह वो अपने पास तूने उसको बुला लिया है, या अल्लाह जितनी भी मेरी बहनें जो हैं जिनके अपने जो है अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह उनकी बेहतरीन बेहतरीन मग़फ़िरत फरमा दे, सबके वालिदैन को
یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ فلا مقام عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال تو نہیں پوچھنا ہے؟ ایسے ٹائم تو بہت ہو گیا ہے اب۔ میرے خیال سے بس اب اسے بند کر دیجئے۔ ایک سوال ہے فرحانہ باجی، کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا ابھی۔ جی جی بتائیے۔ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک عورت ٹیچنگ کی جاب کر سکتی ہے کیا؟ ہاں پردے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے بالکل۔ اچھا، پردے میں رہ کر جاتی بالکل ہیں۔ ضرورت ہے، اگر ضرورت دیکھیں ایک تو انسان شوقیہ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، مال دولت ہے، شوہر اچھا کما رہا ہے، تو زیادہ افضل تو یہی ہے کہ وہ گھر کو وقت دے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو وقت دے۔ لیکن اگر ضرورت ہے اس کو کہ مطلب وہ جاب نہیں کرے گی تو گھر کا وہ مشکل ہے گزارا، اور تو وہ پردے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہے۔ اچھا، اور اتنی ضرورت نہ ہو اور اگر اپنی پڑھائی لکھائی اس نے کی ہے اتنی ساری، اس کو کامیابی مل رہی ہے اگر اس چیز میں ٹیچنگ، وہ اس کے ذریعے مطلب اور کچھ کرنا چاہے اس سے بھی دین کا کام بھی کر سکتی ہے۔ جیسے اگر اس کی جاب لگتی ہے تو اسے بہت سارا بیک گراؤنڈ ملے گا بچوں کا، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے نا گورنمنٹ اسکول میں غریب بچے بھی آتے ہیں، تو اس حساب سے اگر وہ کرنا چاہے۔ نہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ غریب بچوں کو ایسے ہی ہم پڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ زیادہ بہتر جو ہے وہ گھر میں ٹھہرنا بتایا گیا اگر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر اپنے شوہر پہ وقت لگا، اپنے بچوں کی تربیت کرے، وہ بچے جو ہیں اس کو جواب دینا ہے ان کا، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ ہاں نیت پہ ہے سارا دار و مدار، اگر واقعی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تعلق دل سے ہے، واقعی وہی چاہ رہی ہے کہ میں جاؤں گی تو بچوں کو دین کا پیغام دوں گی تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن وہی ہے میں نے کہا دار و مدار مطلب پورا کا پورا تو اللہ تعالیٰ تو دل دیکھ رہا ہے نا، نیت کیا ہے میری، پیسہ کمانے کی نیت ہے یا پھر نیک نیت ہے کہ میں لوگ بچوں کو دینی پیغام دوں گی، تو جی یہ جی اللہ اور اس بندے کے بیچ کی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وہی السلام علیکم باجی۔ فرحانہ باجی وعلیکم اگر کوئی اور سوال ہے کسی کو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی شمیم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی السلام علیکم، میں بول رہی تھی وعلیکم السلام۔ یہ مجھے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کی نماز ہوتی نا، تو ایسا ہے کہ جب تک آپ مسلم اور سورج نکلنے اسراف نہیں ہوتی، ٹھیک جب مسلم پر آپ جو آواز اصل میں آواز جو ہے نا گی۔ آپ دوبارہ دہرائیے، آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی، تو اگر سمجھ میں آیا ہو کسی کے تو مجھے بتائیں گے، آواز جی میں کلیئر یہ نہیں پوچھ بہت لوگ میں یہ پوچھ کے بعد میں نہیں سمجھ رہا کسی کی سمجھ میں، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیونکہ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ باجی یہ وبرکاتہ۔ شاید پوچھنا چاہ رہی ہے اشراق کے ٹائم پر اور ہاں جان نماز سے کھڑے ہو جانے کے اوپر، شاید یہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد اشراق تک نہ بیٹھ سکے اور مصلی سے کھڑے ہو جائیں۔ میرے خیال سے ان کا سوال یہ ہے، جو جتنا مجھے سمجھ میں آیا، ان ہاں کی نہیں آواز تو کٹ رہی ہے۔ ہاں تو فرض مطلب یہ فرض تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے مصلی پر ہی بیٹھے رہیں تبھی اشراق ہوگی آپ کی۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، جب میں اسراف نہیں پڑھتی ہوں نہیں تو بہت سے لوگوں نہیں نے نہیں ایسا نہیں بتایا کہ آپ کو نہیں ایسا نہیں ہے، جی جی ایسا نہیں ہے، یہ تو اچھا بلکہ چلے حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آپ نماز کے لیے گئے فجر کی اور کافی اشراق پڑھ کے جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ان کی بیگم شاید واللہ علم شاید حضرت صفیہ تھیں، واللہ علم شاید میں نام صحیح لے رہی ہوں، جی تو جی 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 وہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھی ہیں، تو آپ نے کہا کہ تم یہ 3 کلمہ اگر پڑھ لیتی تو تم اس سے زیادہ اجر ملتا۔ تو دیکھیے چلے عبادت تو جتنی کی جائے اچھا ہے، آپ جی لگاتار بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے، جی جی یہ فرض ہے یہ نہیں جیسے نہیں ایسا خامد کچھ نہیں وغیرہ وہ جائے تو نا تو مزدوری میں بیٹھ نہیں سکتے مسلح پر، ان کو ایسا وغیرہ نہیں تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جی فجر کے بعد جزاک بیٹھے خیر، وہاں بہت بہت پہ شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ۔ وہی ہے۔ جی رخسانہ ہیرا آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ ریکارڈنگ چل رہی ہے ابھی تک میرے خیال سے، کیا نام